Hello dear friends, welcome to your channel SK Nursing Study. Today we are going to start with another topic in continue with the shock only. So we have discussed about the shock, we have discussed various types of shock, we have covered hypovolemic shock, cardiogenic shock, that are very important shock. Today we are going to start with the another type of shock, again very important, that is called the distributive shock. Distributive shock is one of the shock which is further divided into septic shock, anaphylactic shock and the neurogenic shock. So in my further videos we are going to discuss about neurogenic shock and the anaphylactic shock. Today we are going to discuss about the septic shock. Let's see what is septic shock. So distributive shock. It is also called the vasodilatory shock, which is further divided into septic shock, anaphylactic shock and the neurogenic shock. So today we are going to discuss about the septic shock. What is septic shock? Systemic vasodilation. As I have already told you, distributive shock is the vasodilatory shock. So it is a systemic vasodilation lead to decreased blood flow to the brain, heart, kidney, lungs, liver, causing damage to vital organs. ठीक है बेटा, तो हमारा जो वेजोडाइलेशन की वजह से हमारे ये ऑर्गन्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज वहां पे क्या हो जाता है, डिक्रीज ब्लड फ्लो, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक इज मोस्टली बैक्टीरियल, मतलब वी कैन यूज द वर्ड बैक्टीरीमिया, पॉजिटिव कल्चर हो जाता है बैक्टीरिया का. ठीक है. लास्ट एंड द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ सेप्सिस. अगर सेप्टिक वर्ड देखा जाए बेटा, सेप्टिक वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड सेप्सिस. सेप्सिस का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन. ठीक है. तो लास्ट एंड द मोस्ट सीवियर स्टेज ऑफ सेप्सिस इज कॉल्ड सेप्टिक शॉक. Sepsis is extreme reaction to an infection. Infection reaches the bloodstream and causes inflammation in the body. ठीक है. Whereas septic shock क्या है, significant drop in BP, ऊपर भी मैंने बताया, significant drop in BP that can lead to respiratory or heart failure, stroke dysfunction or other organs and possibly death. So this is about the septic shock. Now let's see what all are the causes of septic shock. It is divided into two: endogenous, inside; exogenous, from outside source. If I can say inside, then skin, that is the surgical site infection. ठीक है बेटा. Urinary tract, that is the urinary tract infections. Respiratory tract, that is the lower respiratory tract infections, and gastrointestinal tract sometimes as a bowel surgery. Whereas the exogenous outside are the surgical instruments जो हम during surgery use करते हैं, drapes, imaging machine and the staff. जो बाहर से हमारे पास infection आ जाती है वो होती है exogenous. जो हमारे बॉडी के इनसाइड ही हमें इन्फेक्शन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंडोजेनस. नाउ लेट्स सी रिस्क फैक्टर कॉजेज द सेप्टिक शॉक. कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम में हैं और वो रिस्क को, डिजीज को बढ़ा सकती है. एज लेस देन 10 एंड मोर देन 70 आर एट रिस्क. मालन्यूट्रिशन, अनीमिया, हेमाटोमा, पुअर सर्जिकल टेक्निक, कैथेटराइजेशन जिससे यूटीआईज भी होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन जिसकी वजह से नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी हो जाती है, मेजर सर्जरीज, ट्रॉमा एंड एक्सटेंसिव बर्न्स. तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनमें सेप्टिक शॉक होने के चांसेस जो होते हैं वो मोर हो जाते हैं. लेट्स कम टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सेप्टिक शॉक. बेटा इन्फेक्शन आ गई, हमें पता है मोस्टली विच, बैक्टीरियल इन नेचर, माइक्रोबियल. ठीक है. लीड्स टू बैक्टीरीमिया, माइक्रोबियल टॉक्सिन्स विच फर्दर लीड्स टू एक्सेसिव होस्ट रिस्पॉन्स.
or you can say that host response is activated. Host factor lead to cellular damage because inflammatory response is being started, which leads to tissue injury and the organ damage, and the last step is death. Or otherwise you can say that in a easy way, infection lead to sepsis, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ पे आ गए बेटा, हमारा ब्लड स्ट्रीम में, ये होती है सेप्सिस, which leads to septic shock, that is decrease BP, which damage the organs and leads to multi-organ dysfunction syndrome. Multifunctional organ dysfunction syndrome. कौन कौन सी organ है? Brain, lungs, heart, liver and kidney, and again the result is death. So you choose either way of the pathophysiology to explain the septic shock. Let's discuss about the sign and symptoms. Very, very important sign and symptoms of the septic shock. Learn the word it's about time. T-I-M-E. So you can learn the mnemonic. It's about time. T-I-M-E. T is for temperature. I is for infection. M is for mental decline. E is for extremely ill. If the person reached to mental decline means confusion, sleepy, difficult to arouse. Whereas extremely ill patient shows a symptom like severe pain, discomfort and shortness of breath. SOB. ठीक है बेटा. So learn with the mnemonic. It's about time. T-I-M-E. Further, the symptoms are divided into early stage and the late stage. Early stage means compensated. अभी हमारी body compensate कर रही है. That's why called warm shock. Like ऊपर मैंने बताया temperature, febrile, shivering and malaise, warm, dry and flushed skin, hyperventilation, rapid bounding pulse and wide pulse pressure. तो ये हमारे अर्ली स्टेज में होंगे सिम्टम, जब हमारा बॉडी क्या कर रहा है बेटे, कंपनसेट कर रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है. पेशेंट आपको कैसे बताएगा? नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड अप, स्ट्रॉन्ग स्लीपीनेस, एक्सट्रीम कंफ्यूजन, जो ऊपर हमने मेंटल डिक्लाइन में भी पढ़ा. ठीक है बेटे. Whereas the patient in the late stage is decompensated, जब ठीक होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं. Also called cold shock. ठीक है. इसमें हमारे पास कैसे सिम्टम आएंगे? अल्टर्ड सेंसोरियम, कोल्ड क्लैमी स्किन, वीक पल्स, हाइपोथर्मिया, हाइपोटेंशन, ये हमें पता है, ओलिगोयूरिया, जॉन्डिस, upper GI bleeding and DIC, that is disseminated intravascular coagulation. ठीक है बेटा. So we have divided the symptoms. First main, it's about time, TIME, and divided into two, that is the early stage and the late stage. Let's discuss about the diagnostic test. किन किन टेस्ट करके हम पेशेंट को फाइंड कर सकते हैं पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सेप्टिक शॉक. ठीक है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड कल्चर, किसका? स्पूटम, यूरिन, वुंड स्वैब, एनी एक्सुडेट. इनकी क्या करनी है हमने? माइक्रोस्कोपी एंड कल्चर एंड सेंसिटिविटी. चेस्ट एक्सरे, एब्डोमिनल एक्सरे, एब्डोमिनल पेल्विस, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड सीटी स्कैन. बेटे ये सारे टेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये डिजीज मल्टीपल ऑर्गन तक चली जाती है और हमें ओवरऑल बॉडी असेस करनी होती है. सो दैट इज व्हाई इट एक्सरे ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन एंड यूएसजी ऑफ एब्डोमिनल एंड पेल्विस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ सेप्टिक शॉक. कैसे हम इस डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं? सेप्टिक शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी दैट रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट रिसस्टिटेशन. इफ पॉसिबल, पेशेंट शुड बी एडमिटेड टू ICU.
बेटा जो अभी मैं आगे आपको बताने जा रही हूँ दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू द मेडिकल ट्रीटमेंट कि हमने कौन कौन सी ड्रग्स देनी है, बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नर्सिस का रोल इन मेडिसिन ऑल्सो, कि अगर मैं ड्रग बोल रही हूँ डोपिटामिन तो नर्सिस ने वो डोज कैसे देनी है, यू शुड। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रीटमेंट पार्ट। गोल क्या है, हमने हीमोडायनेमिक स्टेटस ठीक करना है पेशेंट का, हमने टिश्यू परफ्यूजन को रिस्टोर करना है, देयर बाय इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, एडमिनिस्टर करनी है ऑक्सीजन, कॉम्बैक्ट करना है बैक्टीरिया एंड साइटोकिन्स, इसको तो बिल्कुल ही खत्म करना है हमने, एलिमिनेट सेप्टिक फोकस, किसकी वजह से सेप्सिस हो रही है उसको हमने खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, रिसस्टिटेशन कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, with the help of vasopressors, with the help of inotropic therapy। तो ये 3 चीजें हैं जिनके साथ हमने पेशेंट को रिसस्टिटेशन करना है, वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, वेजोप्रेसर्स एंड आइनोट्रोपिक थेरेपी। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट एज अ नेम वॉल्यूम आईवी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, IVSS। कौन सा वॉल्यूम स्टार्ट करना है हमने, क्रिस्टलॉइड्स 1 लीटर इन 30 to 45 minutes। Then reassess and repeat as appropriate. Monitor the hourly urine output. It should be 30 to 50 ml per hour. बेटे यहाँ पे नर्सिस का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, 1 लीटर 30 से 45 मिनट तक जाना चाहिए, तो हमारी फ्लूइड रिक्वायरमेंट, फ्लूइड कैलकुलेशन करनी है हमने, ड्रॉप्स देखनी है कितनी ड्रॉप्स जानी चाहिए, रीअसेस करना है, फिर रिपीट करना है, और साथ साथ हमने क्या चेक करना है, यूरिन आउटपुट। Let's come to the second part of resuscitation, that is the vasopressor. After adequate fluid resuscitation or about 4 लीटर, ऊपर हमने 1 लीटर बताया था 30 to 45 मिनट्स, रीअसेस करने के बाद हमने कितना देना है, 4 लीटर, विद साइंस ऑफ फ्लूइड ओवरलोड एंड परसिस्टेंट हाइपोटेंशन अगर है। 2 मेन ड्रग्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। नॉरएपिनेफ्रिन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग इन दिस केस एज अ वैसोप्रेसर एंड सेकेंड इज द डोपामिन। थर्ड जो हमने कल अपने कार्डियोजेनिक शॉक में भी पढ़ा था बेटे, दैट इज आइनोट्रोपिक। आइनोट्रोपिक वेरी फोर्सफुल। डोब्यूटामीन इन्फ्यूजन कितनी, 20 माइक्रोग्राम kg per minute बी एडमिनिस्टर एडेड टू वेजोप्रेसर इन प्रेजेंस ऑफ मायोकार्डियल डिस्फंक्शन एंड साइंस ऑफ हाइपोपरफ्यूजन। राइट बेटा, सो इन द फर्स्ट resuscitation we have to give volume replacement, vasopressor and the inotropic therapy. Second very important beta is the oxygen administration. In a cleared and the patent airway, oxygen is delivered by a face mask to increase the oxygen saturation, increasing uptake and delivery to the tissue. यहाँ पे नर्सिस का रोल क्या है कि हमने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहने हैं, यहाँ पे हमें किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, एज अ नर्स ओनली वी कैन इम्प्लीमेंट द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड पार्ट इज एंटीबायोटिक्स। बेटे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हमने पढ़ा है, तो क्या स्टार्ट करना है, एंटीबायोटिक एज पर प्रिस्क्रिप्शन। सो गिव इन अ लार्ज डोज IV टू कम्बैक्ट इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्टिव थेरेपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेफ्ट्रियाक्सोन प्लस मेट्रोनिडाजोल। सेफ्ट्रियाक्सोन कितनी बेटे, 50 आई है बेटे, इट्स 50 to 100 mg per kg अप टू 2 ग्राम डेली। mg है यहाँ पे ग्राम, कितने दे सकते हैं, मैक्सिमम 2 ग्राम डेली, प्लस मेट्रोनिडाजोल 500 mg 8 hourly, कितने दिन के लिए, 7 to 10 days के लिए। और इफ द कॉज इज वायरल देन वी हैव टू गिव द एंटीवायरल थेरेपी। नेक्स्ट बेटा फोर्थ इज दी स्टेरॉइड्स। कौन सा स्टेरॉइड मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन 2 to 6 ग्राम डेली फॉर 2 days। इट एज वर्क एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी शॉक इफेक्ट्स। Last is bete NSAIDs, that is a non-steroidal anti-inflammatory drugs, has anti-inflammatory effect. Next is oxygen free radical scavengers. For example, superoxide dismutase, vitamin C, allopurinol used to decrease tissue damage and multi-organ function dysfunction in septic shock. Very important, glycemic control soluble insulin to maintain sugar. आप 80 to 120 mg हमारा नॉर्मल होता है, तो इतना मेंटेन करने के लिए। नेक्सोलोन नेलोक्सोन
to increase the BP. Next is, ninth is prevention of further coagulation by giving recombinant human activated protein C, and last is surgery, resuscitative and therapeutic. एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, दैट इज अ डिब्राइडमेंट ऑन ड्रेनेज ऑफ एब्सेस. अगर ऐसा कुछ हो तो हम सर्जरी भी कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द सेप्टिक शॉक. बट इसमें मैंने साथ साथ आपको बताया कि नर्सिस का ही रोल होता है. डॉक्टर्स ने सिर्फ हमें प्रिस्क्राइब करना है, लेकिन उसको कैलकुलेट करके ड्रग्स देनी इज द फंक्शन ऑफ द रोल ऑफ द नर्सिस. ओके बेटा, अगर हम इसको ठीक नहीं कर रहे हैं सेप्टिक शॉक को, हमने बोला इट इज द मेडिकल इमरजेंसी. अगर इस मेडिकल इमरजेंसी को हम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, डिले कर रहे हैं, तो व्हाट ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस व्हिच कैन अकर. ARDS, acute respiratory distress syndrome, acute renal failure, disseminated intravascular coagulation, encephalopathy, liver failure, multiple organ dysfunction syndrome, and leads to death. Last subtopic for today's topic is the nursing management. Assessment में हमने हिस्ट्री, क्या कॉज था इन्फेक्शन का, क्या पेशेंट की क्लॉटिंग प्रोफाइल है, वाइटल साइंस में स्पेशली हमने बीपी और यूरिन आउटपुट देखना है पेशेंट का, एबीजी एनालिसिस करनी है, एंड हमने सारी बायोकेमिस्ट्री एंड हिमेटोलॉजी की रिपोर्ट्स चेक करनी है टू फर्दर क्लैरिफाई द सिचुएशन एंड गिव द नर्सिंग मैनेजमेंट टू द पेशेंट. ओके, व्हाट ऑल आर द नर्सिंग डायग्नोसिस बेटा? सो प्रायोरिटी वाइज फर्स्ट इज impaired cardiopulmonary tissue perfusion, बिकॉज बेटे ये क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन. तो हमने पहले सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू परफ्यूजन को ठीक करना है रिलेटेड टू वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन. सो हाउ वी कैन करेक्ट दिस? assess the vital signs every 2 hourly, administer oxygen as prescribed, assess the skin for cyanosis and pallor, एंड एडमिनिस्टर वेजोप्रेसर्स एज प्रिस्क्राइब्ड. ये मैंने आपको मेडिकल मैनेजमेंट में बता दिया कि हमने कौन कौन से वेजोप्रेसर्स देनी है. ठीक है. सेकेंड इज बेटे इम्पेयर्ड फ्लूइड इलेक्ट्रो इम्बैलेंस रिलेटेड टू कैपिलरी लीकेज. इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? असेस द साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस हो रहा है या फिर डेफिशिएंसी. आईवी फ्लूइड्स देने हैं. इसमें हमने मोस्टली कौन सा स्टार्ट किया था? क्रिस्टलॉइड्स, अगर आपको याद हो. 1 liter 30 to 45 minutes. Vasoactive agents as prescribed. Eternal feed देनी है as far as possible. Diuretics देने हैं कि यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे. Monitor the urine output every hourly. Third is altered body temperature related to widespread infection. Body temperature को हमने ठीक करना है बेटे. Assess the vital signs every 2 hourly. Assess initial signs of infection. Meticulous hand washing. Carry out all the invasive procedures using aseptic technique. Aseptic. Sepsis क्या था? Infection. Aseptic क्या है? Very easy language. Infection free. Administer the antibiotics as prescribed, जो मैंने आपको बताया था, Ceftriaxone and the metronidazole. Next priority nursing diagnosis is risk for impaired skin integrity and related to disease condition, and risk for bleeding related to disease condition. So this is all about the nursing diagnosis. At the last I want to say one very important thing. Meticulous hand washing infection, इसको ठीक करने के लिए क्या चाहिए? Meticulous hand washing, infection prevention techniques, following aseptic precautions are the key to prevent sepsis and septic shock. So this is all about the septic shock. I hope you understand, and I have put it in a point wise so that you can learn easily. So we are going to discuss about the neurogenic shock and anaphylactic shock in my further videos. Keep in touch with me. Write in a comment box if you don't like anything, if you want to change anything, and stay blessed. Thank you very much.